Honorable panel speaker sahab, I take the opportunity to speak on 5 demands in the 4th batch of the demands of grants for 26 and 27. These demands for grants includes road and buildings, labor and employment, forest, science, technology and environment, administration of religious endowments and medical and health. For road and buildings, establishment expenditure 1,276 crores .26. Scheme expenditure 7,021 crores .48. For labor and employment 838.36 crores. For scheme expenditure 159.52 crores. Forest, science, technology and environment 850 crores .14. And for scheme expenditure 198.66 crores. Administration of religious endowments 1,201 crores. Medical and health 11,239 for establishment expenditure, and for scheme expenditure 1,947.93 crores. This total establishment expenditure comes to 15,405.02 crores, and for scheme expenditure 9,327.59 crores. These 5 demands together have been allocated rupees 24,732.61 crores out of the total budget expenditure of rupees 3,24,234 crores. Thus, these 5 demands accounts to 7.63% of the total budget, sir. First, I will go on the medical, sir, medical and health. In the next year's budget, the Health, Medical and Family Welfare Department has been allocated rupees 13,187 crores. This allocation accounts for only 4.07% of the state budget, sir. It is only 50% of the target stipulated in National Health Policy 2017. Under the National Health Policy, the states were targeted to increase their health care spending to 8% of the state budget by the year 2020. There is an urgent need to step up the medical and healthcare budget substantially in the forthcoming years to meet the targets set out in the National Health Policy. Our party welcomes the decision of the state government of transform the Telangana Vaidya Vidhana Parishad with bed strength of 12,720 into a full-fledged government secondary healthcare department. ये बहुत अच्छा काम है साहब, जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है ये तेलंगाना वैद्या विधाना परिषद के तहत जो बेड्स इंक्रीज कर रहे हैं दवाखानों में, जो स्ट्रेंथ 12,720 करोड़ सर, ये लोगों के लिए बहुत से फायदा होगा साहब हर एरिया में. I welcome the decision to sanction 95 dialysis centers in addition to the existing 102 centers to extend this facility to thousands of poor patients who are in dire need of dialysis. There are now 34 government medical colleges across the state with 4,090 MBBS seats. These includes 9 medical colleges started after the Congress assumed power in the state in December 2023. ये बहुत हुकूमत ने अच्छा काम किया कि आज मेडिसिन के लिए जो आज डिमांड है और डॉक्टर्स की हमको ज़रूरत है, जिसके लिए जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई अभी तक 9 कॉलेज इन्होंने खोला सर. I would request the government to ensure that these medical colleges are provided with required teaching and non-teaching staff, nursing and paramedical personnel, and the teaching hospitals are provided with the required infrastructure expeditiously. सर कॉलेजेस तो हम खोले, लेकिन इसमें हमको बराबर का स्टाफ होना चाहिए सर, और आपके नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, पैरामेडिकल पर्सनल होना चाहिए,
ताकि इसको सही तरीके से हम चला सके, और सही तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सब। Similarly, the government has established 16 new nursing colleges and 28 paramedical colleges, and these should be provided the infrastructure, equipment and the staff without any delay, sir. मैं हुकूमत से यही कहूँगा, आप तो कॉलेजेस खोले साहब, 16 नए नर्सिंग कॉलेज आपने खोला, बहुत अच्छी बात है। 28 पैरामेडिकल कॉलेज आपने खोला, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सही तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर करिए साहब, बनाइए, और जो इक्विपमेंट की जरूरत है और जो स्टाफ की जरूरत है, विदाउट एनी डिले, कोई ताखिर के उसको इमीडिएट करना चाहिए साहब। क्योंकि आप देखते हैं कि जहां भी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर जो मेंटेनेंस नहीं होता, वहां पर स्टाफ बराबर नहीं होता, वहां पर दवाइयां बराबर नहीं होते, तो मैं हुकूमत से कहूंगा ये पूरी चीज का ख्याल रखा जाए। द गवर्नमेंट हैज सैंक्शन्ड 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स under the aegis of Telangana Institute of Medical Sciences in Hyderabad at Lal Bagh, LB Nagar, Alwal and Sanat Nagar. Apart from the TIMS hospital functioning in the Gachibowli area, sir. The work on these new super speciality hospitals should be expedited so that they become the functional and ease the pressure on the existing teaching hospitals under Usmania and Gandhi Medical Colleges in the twin cities before the end of 2026 as targeted. साहब ये जरूरी है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोले। आज का बहुत अहम मुद्दा है ये, क्योंकि लोग इतने बीमार हो रहे हैं और नए नए बीमारियां आ रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है। ये 3 जो दवाखाने आप बना रहे हैं, इसको जल्द से जल्द आप बनाइए साहब। आई वुड ऑल्सो अर्ज द गवर्नमेंट टू एंश्योर द एक्सपेंशन वर्क्स एट द निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस and complete by the end of 2026. There is also need to expand the facilities at the MNJ Cancer Hospital, Nilofer Hospital, Sarojini Devi Hospital, and existing area hospitals and Ayush hospitals in Hyderabad and other cities in the states. साहब ये तब होगा जबकि इसकी कमेटी की मीटिंग रेगुलर होना चाहिए साहब। आप ये देखिए, MNJ हॉस्पिटल हैदराबाद में आता है, तो इसका चेयरमैन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसका चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है? रंगारेड्डी कलेक्टर है साहब। अगर मीटिंग होना है, जो नीलोफर का दवाखाना है वहां की कमेटी का साहब, ये जो है सो नीलोफर दवाखाने का जो कमेटी है साहब, उसके चेयरमैन रंगारेड्डी कलेक्टर है, जबकि दवाखाना हैदराबाद में है। अगर जब ये कमेटी की मीटिंग अगर रेगुलर नहीं होगी, दवाखाने में किन किन चीजों की जरूरत है कि पता नहीं चलेगा, जिसमें हमारे MLA भी हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको तो होना चाहिए हैदराबाद कलेक्टर के अंडर में आना चाहिए साहब, क्योंकि हैदराबाद में है साहब। और एक बात सुनकर ताजुब होगा, डायलिसिस का बराबर यहाँ पे इंतजाम नहीं है साहब। डायलिसिस के मशीन यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। इन ऑल बस्ती दवाखाना ऑफ द साउथ जोन, ओल्ड सिटी एरियाज ऑफ द हैदराबाद, मेनी डॉक्टर्स पोस्ट आर वैकेंट एंड देयर इज ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। साहब हमारे एरिया में बस्ती दवाखाने तो है साहब, बस्ती दवाखाने हैं, लेकिन वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। अगर डॉक्टर्स है, दवाएं नहीं है। आपको दवाओं के लिए आपको दवा खरीद के फंड बढ़ाना चाहिए साहब, और हर बस्ती दवाखाने में डॉक्टर रेगुलरली आना चाहिए, उनको अपोज करना चाहिए साहब। और आज ये हो गया साहब, बस्ती दवाखानों का भी हाल ये हो गया कि गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी बनाई कि जितने गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, जितने गवर्नमेंट के हॉस्टल्स है, दवाखाने हैं, जो ऑफिसर्स है, वो जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में रन करते हैं, उसको गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। तो आज ये परेशानी इसमें ये हो रही, बहुत अच्छी बात है साहब। या तो आप एरिया में नए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाइए, या तो आप, हमको जो परेशानी हो रही, दवाखानों को यहाँ मुंतकिल किया जा रहा है साहब, ये तमाम ये ऑफिसर्स को मुंतकिल किया है, तो जो बस्ती दवाखाना जिस बस्ती के लिए बनाया गया साहब, उसको उठा के दूसरी जगह जा रहा है। आज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बराबर हमारे पास नहीं है साहब। There is urgent need to fill up the vacant post and provide required quantity of medicines. In Barkas Hospital, 5 doctors and 10 staff nurses posts are vacant, sir. And our floor leader, Janab Akbaruddin Owaisi Saab, raised this issue and wrote letters to health department officials. सब बार बार आपने सुना असेंबली में हर वक्त
हमारे फ्लोर लीडर साहब आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये मसले को बार बार उठाया, इतने डिटेल में उठाया, बार बार हुकूमत को तवज्जो दिलाया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक वो चीजें फुलफिल नहीं हुए साहब। तो फिर यहां हमारा बोलने का मतलब क्या है साहब? बार बार हम बोलते हैं, हम किस लिए बोल रहे हैं? हमारे लिए तो नहीं बोल रहे, जो हमारी गरीब आवाम है उनको सहूलत पहुंचाने के लिए बोल रहे। फंड्स तो आप दे रहे, लेकिन काम बराबर नहीं हो रहा साहब। देयर इज नीड टू फिल अप वैकेंट पोस्ट इन बार्कस पीएससी एंड अदर पीएससी इन द होल सिटी एरिया। हर जगह क्या ये पीएससी का भी वही हाल है साहब, कहीं पर भी वैकेंसीज खाली है। देयर इज नीड टू अलॉट स्पेस for SPHU office in Barkas cluster with the minimum facilities, sir. The Nizamiya Tibbi College and Unani Hospital doctors and staff nurses posts are vacant. Due to shortage of the staff, the UG and PG seats are reduced, sir. साहब इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा साहब, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ साहब कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पर स्टाफ नर्सेस की कमी है, पोस्ट उसके वेकेंट है साहब। और जो लास्ट टाइम जो सीट्स का हुआ था साहब, तकरीबन 24 सीट यहां से चले गए थे साहब। लेकिन मैं कोशिश किया और मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डॉक्टर क्रिस्टीना मैडम का, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का, हमारे डायरेक्टर ऑफ आयुष का। मेरे कहने के ऊपर क्रिस्टीना मैडम बिजी थे, रातों रात इन्होंने लेटर भेजा दिल्ली को, जिसकी वजह से यहां पर लास्ट टाइम वो सीट्स आ गए साहब। और उनसे हमने ये कहकर लिया था कि अब तक हमको फुलफिल कर देंगे रिक्वायरमेंट, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस साल में नहीं हुआ साहब, फिर वो हमको प्रॉब्लम आने वाला है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को तवज्जो दिलाना चाहता हूं और मैडम को तवज्जो दिलाना, आप लोग तो कोशिश कर रहे साहब, मैं पूरी तरीके से आपकी तारीफ करूंगा कि जो 4 महीना दवाखाने के लिए आप और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बहुत ही अच्छा काम किया अब तक, जो भी आज काम हो रहे हैं साहब। और मैं साथ साथ मैं बेहद शुक्रगुजार हूं हमारे आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना का साहब, कि इन्होंने 4 महीना दवाखाना बनाने के लिए 52 करोड़ रुपए साहब इमीडिएट इन्होंने सैंक्शन किया। ये प्रीवियस गवर्नमेंट ने जियो दिया था, लेकिन इमीडिएट फ्लोर पर जब आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका डिमांड किया तो इमीडिएट उसी वक्त इस फ्लोर पर खड़े रह के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, मैं पैसे रिलीज कर रहा हूं, सैंक्शन किया। फिर हमने कहा कि 52 करोड़ कम पड़ रहे हैं, टोटल उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 80 करोड़ साहब, वो भी उन्होंने किया साहब। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उस चीजों को देखिए, ताकि इस साल भी हमको परेशानी आने वाली है। अभी से देखिए, ऐन वक्त में हमसे भागने की परेशानी होने की जरूरत। मैडम को भी याद है, मैडम उस वक्त डॉक्टर मरी चंद्रा रेड्डी वहां पर थे साहब, और मीटिंग में थे, कॉलेज के स्टाफ को वहां पर भिजाया, इमीडिएट बाहर निकल कर उन्होंने साइन किया, और यहां तक कि स्टैंप लगाने के लिए अटेंडेंस से उन्होंने कहा अटेंडेंस स्टैंप लेके बाहर हटा। इमीडिएट उनके एक्शन की वजह से सीट्स आए सर। मुझे बोलना जरूरी है कि जो काम उन्होंने किया ड्यूरिंग 22-24, they also need to fill all the vacant posts of de-reserving the reserve posts of SC, ST and BC and women, because Unani courses are imparted in Urdu medium, and the persons from the reserve categories do not opt for the Unani courses, sir. साहब ये भी बेहद जरूरी है साहब। हमेशा जो ये SC, ST, BC ये जो सीट्स है साहब, जो अब वेकेंट जा रहे हैं साहब, लास्ट ईयर फुलफिल हुए साहब। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोगों की वजह से और हमारी कोशिश की वजह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश की वजह से, और इस साल भी वो जाएंगे तो मैं कहूंगा कि डिजर्व करना जरूरी है साहब। During 22-24, under the 15th Finance Commission grants, sanction was accorded for the construction of 68 new buildings of the urban public health centers to provide accessible, affordable and equitable primary health and care services to the people living in the cities and towns. Accordingly, 37 buildings of UPSC have been approved for construction in the GHMC area with sanction of rupees 1.43 crores for each UPSC, sir. The funds were allotted to GHMC for construction of UPSC, but the GHMC has not yet started the work and the local people are facing a lot of problems, sir. साहब यहाँ पर जो हमारे UPSC के लिए साहब 37 बिल्डिंग्स
अप्रूव किए गए, इसका पैसा जीएचएमसी को दिया गया, जीएचएमसी बनाने का है, लेकिन जीएचएमसी अफसोस की बात ही आज तक नहीं बनाई, क्योंकि इसके लिए जमीन ही नहीं है साहब। अगर हम बल्दिया से पूछते हैं जमीन, जहां जो बेकार जमीन है कि कोनों में कहीं जमीन है बची हुई, कुछ कोई छोटे पार्क से छोटा वो है, वो हमको नहीं देने साहब। इसके लिए देना चाहिए ताकि जो बेकार पड़ी जगह है या गवर्नमेंट दूसरी जगह देख के देना चाहिए हमको, हाउसिंग बोर्ड की या कोई, ताकि दवाखाने वहां बने जाए साहब। Hence, I request the government to reallocate the works to TGMSIDC, Telangana Medical Service and Infrastructure Development Corporation, sir, so as to complete the works in time to serve the needy people, sir. सर ये फंड्स हमको reallocate करना चाहिए साहब तेलंगाना मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, ताकि जल्द से काम हो जाए, इससे आवाम को इस्तेफादा हो साहब। We welcome the initiative of the government to prepare the health profile of all people living in the state and issue digital health cards, and I would like to when this project will be implemented, sir. सर बहुत अच्छी बात है, हम भी हुकूमत का खैर मुकद्दम करते हैं कि इन्होंने जो लोगों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं साहब, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं हुकूमत से यही गुजारिश, मिनिस्टर साहब से यही कहना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा सर, जवाब दे वो कि कब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं साहब। क्या दूसरे प्रोजेक्ट की तरह भी कोल्ड स्टोरेज पर नहीं जाएगा ना साहब, इमीडिएट इंप्लीमेंट किया जाए सर। I would request the Medical and Health Minister, Janab Damodar Narasimha Sahab, to ensure that all pending dues to the private hospitals in the state and the Rajiv Arogya scheme and are cleared at the earliest, so that the uninterrupted medical care is available to the BPL families, sir. साहब आज कई करोड़ के बिल्स पेंडिंग है साहब, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आना चाहिए साहब। राजीव आरोग्य स्कीम में साहब, आरोग्य श्री स्कीम में कई करोड़ के बिला पेंडिंग है साहब आरोग्य स्कीम में। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं साहब, मुतालबा करता हूं कि इमीडिएट आप ये बिल्स को भी रिलीज किए, ताकि प्राइवेट दवाखाने वो आसानी से फिर से और गरीबों का इलाज कर सके, क्योंकि दवाखानों के पास फंड्स कहां से आएगा साहब। काम अगर आप देंगे पैसे तो काम होगा। काम बहुत अच्छा कर रही है हुकूमत, आप इसको इमीडिएट बीपीएल फैमिलीज के लिए और ये आरोग्य श्री में पैसे रिलीज करिए। द गवर्नमेंट हैज एनहांस्ड द कवरेज under Rajiv Arogya Shri scheme from 5 lakhs to 10 lakhs for each BPL family, and on account of this increase, the private hospitals are providing medical care and enhanced coverage, sir. ये बहुत ही अच्छी बात है साहब, मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा मेरी जमात की जानिब से, बहुत काम इन्होंने अच्छा किया। आरोग्य श्री स्कीम शुरू हुई थी अली जनाब राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में, उस स्कीम में भी हमारे फ्लोर लीडर आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी काफी कोशिश की इसके लिए, और राजशेखर साहब को बार बार इन्होंने इंसिस्ट किया, जिसकी वजह से ये स्कीम हुई। और उस वक्त के हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आली जनाब पी.के. अग्रवाल साहब थे, उनका नाम लेना भी मैं यहां पे चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और इमीडिएट इसका ये बिल्कुल आया सब आरोग्य श्री का। और आज हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर के अंडर में सब जो 5 लाख से 10 लाख का काम किया, बढ़ाया है, इसके भी मैं खैर मुकद्दम करता हूं साहब। और इसमें जरूरी है साहब, मोर सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट हैव इंक्लूडेड अंडर आरोग्य श्री, एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग द माउंटिंग बिल्स ऑफ आरोग्य श्री इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। साहब जो नए प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट में इंक्लूड किए साहब, ये बहुत ही अच्छा करे साहब, इसकी वजह से बिल्स भी बढ़ेंगे साहब। The government sanctioned 6 hospitals works in old city area, sir, but no progress in there, sir, in their works. GORT number 573 dated 30/9/2023, renovation and restoration of heritage building and construction of new blocks at the government Nizamiya Tibbi Hospital, sir, college. साहब इसके लिए मैं कहूंगा ये काम सैंक्शन हुआ इमीडिएट, जैसा मैंने कहा फ्लोर पर सीएम साहब उठे, इमीडिएट अनाउंस किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही जुर्रत का काम, बहुत ही बड़ी बात है साहब, जिन्होंने इमीडिएट इसको किया। और इसके लिए मोहतरम आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार इंसिस्ट किया, इसको ये काम हुआ। मैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे मिनिस्टर साहब के चैम्बर में जाके भी हमने मिला उनसे, वहां पर हमारे
हेल्थ सेक्रेटरी को भी इन्होंने बुलाया, मिनिस्टर साहब, वहां जो काम शुरू हुआ साहब, वहां पे जो रुकावट आ रही थी, पुरानी बिल्डिंग एक बनी हुई है साहब आरसीसी की, वो एक इस तरह से बनी हुई है साहब जो कॉलेज में बराबर सेट नहीं हो रही साहब। आज हमने जो प्लान डाला है, जो कहा 4 मीनार दवाखाने का, वो पुरानी बिल्डिंग को, जो एग्जिस्टिंग पुराना हॉस्पिटल है साहब, हेरिटेज बिल्डिंग, उसका रेस्टोरेशन और रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ साहब, उसमें वो काम अलग हो रहा है। और बाजू हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, उसको डिसमेंटल किया गया और आउट पेशेंट को डिसमेंटल करना है साहब, और ये पुरानी कॉलेज बिल्डिंग को पुराना जो है साहब उसको डिसमेंटल करना है, जिसके लिए मिनिस्टर साहब ने बुलाकर कहा गर्ल्स हॉस्टल टूटा, वो साइड तो काम शुरू हुआ साहब, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसका अकाउंट नहीं खुला था, गुत्तेदार को बिल नहीं मिल रही थी, तो वो स्लैब्स पड़ने के बाद वहां पर रोका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम शुरू हुआ साहब। मैं बार बार यहाँ पे कोशिश की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने अकाउंट ओपन किया साहब, और आज काम रुका हुआ है। वो इसलिए रुका हुआ है कि बिल्डिंग डिसमेंटल होना है साहब। बार बार मैं तवज्जो दिलाता हूं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को बार बार दिलाता हूं, वो लोग कहते हैं कि टूटने का, साहब बुलाकर मिनिस्टर साहब ने कहा ये बिल्डिंग तोड़ना चाहिए, इमीडिएट स्टैंडिंग ऑर्डर दिया, लेकिन आज तक वो बिल्डिंग ने तोड़े, जिसकी वजह से साहब वो दवाखाने का काम रुका हुआ है। वो इमीडिएट बिल्डिंग तोड़ना चाहिए, अगर टूटेगा तो दवाखाना सही तरीके से बनेगा साहब। आज जो बना हुआ है, कुछ थोड़े पैसे आए, कोई इधर बना दिए, कोई उधर बना दिए, सही तरीके से दवाखाना नहीं है, कॉलेज नहीं है साहब। हमको सिस्टमेटिक बनाना है तो बिल्डिंग तोड़ना है साहब। पैसा सैंक्शन है, पैसा आ गया है, लेकिन काम रुका हुआ है। मैं मिनिस्टर साहब से भी तवज्जो दिलाऊंगा कि आप इस पे इमीडिएट एक्शन ले साहब। GORT नंबर 575 dated 39/2023, upgrading of UCSC at Barkas, 30 bedded to 50 bedded hospital, 9.5 crores. Work started, but due to not clearance of bills, the work is still pending. ये भी वही प्रॉब्लम है साहब। बारकस के दवाखाने का अपग्रेड किए, 30 बेड से 50 बेड करे, 9 करोड़ 50 लाख रुपए सैंक्शन हुआ, काम शुरू भी हुआ, लेकिन बिल नहीं मिली, गुत्तेदार रोक दिया साहब। GORT नंबर 577 dated 39/2023, establishment of 100 bedded area hospital at Bandlaguda area with the cost of ₹42 crores. वर्क यॉट स्टार्टेड साहब। आज तक काम शुरू नहीं हुआ साहब। ये इसकी वजह बताना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, डिले क्यों हो रहा है साहब। GORT नंबर 574, GORT नंबर 576 dated 39/23/2023, establishment of 50 bedded CSC at SRT colony Yakutpura, 18.80 crores were sanctioned. Still the land is not yet allotted by GHMC sir. They are not issuing the NOC sir. Take up the work. दवाखाना सैंक्शन हुआ साहब, 2023 में सैंक्शन हुआ, लेकिन बार बार हम GHMC कमिश्नर को बोल रहे हैं कि जगह अलॉट करो, बताया हमने, लेकिन उसको जगह बताने के बाद भी सब चीज हो गई, लेकिन आज तक उसे NOC इश्यू नहीं हुआ। मैं हमारे मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इमीडिएट इसमें NOC दिलाना चाहिए साहब। GORT नंबर 487 dated 30/9/2023, establishment of 100 bedded hospital area at Kamatipura sir, 42 crores has been sanctioned. Work started, but due to non-clearance of bills, work are still pending. इसमें वजह साहब के अकाउंट अभी तक अकाउंट नहीं खुला साहब, जिसकी वजह से बिल पेंडिंग है, काम तो शुरू हो गया, गुत्तेदार काम छोड़कर चले गया साहब। अभी वो चाह रहा है कि बिल रिलीज हुई तो काम तो आ जाएगा। तो हुकूमत से तवज्जो दिलाता हूं कि आप इमीडिएट इस पर तवज्जो दें। और एक मेरे एरिया में साहब एक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ साहब, पैसा भी रिलीज हुआ, लेकिन आज जगह वहां पर नहीं है साहब बनाने के लिए। हम बार बार GHMC को बोल रहे हैं, या वहां पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहां बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे जगह नहीं मिल रही साहब। मैं इसके लिए भी चाहूंगा कि GHMC से हमको जगह दिलाया जाए साहब। नाउ विल स्विच ऑन टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सर। फॉर द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिमांड, द एलोकेशन इज ₹998 crores sir. I may recall the government has proposed a welfare scheme for gig and platform workers sir. The draft bill has read to provide social security measures, employment and service conditions, safety, health and welfare measures
for the gig and platform workers and posted on the website of Labour Department for inviting suggestions from the general public, sir. I welcome the decision of government to extend social security to the gig and platform workers in Telangana with coverage of 5 lakhs accidental death insurance, sir. ये बहुत अच्छी बात है साहब. हुकूमत ने पहली मर्तबा ये ऐलान किया है कि कवरेज उनको किए हैं जो हमारे गिग के वर्कर्स हैं साहब, उनको अगर किसी एक्सीडेंटल डेथ अगर हुई तो उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा साहब. The government has promised to bring a bill in this regard and I would like to know when this bill will be introduced, sir. मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा बिल कब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साहब. There are 17 employment exchanges under the Commissionerate of Employment and Training in the state which are mandated to register the unemployed youth between the age of 14 to 54 years, sir. Employment youth, sir, 14 साल से 54 साल, इसमें मुझे हंसी भी आ गया था. 54 साल का यूथ बोल रहे साहब, क्योंकि यहाँ पर नौकरियां नहीं मिलने से लोगों की उम्र इतनी बढ़ रही है साहब, बेचारे 54 साल तक भी नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ने के बाद भी नहीं मिल रही है, तो इसको इमीडिएट नौकरियां भी देना चाहिए साहब. However, the note on demand and outcome budget document of the Labour Employment Training and Factories Department do not provide any data on unemployed youth registered with the employment exchange, sir. साहब इसका डेटा देना चाहिए हमारे को, इसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ कितने रजिस्टर हुए. The Telangana government has sanctioned 68 advanced training centers in collaboration with the Tata Technologies Limited for upkeep scheme, the youth for the higher employment opportunities, sir. Out of these ATCs, 65 are attached to Government Industrial Training Institute and the other 3 are the standalone institutions with an intake of 20,000, sir. The government has sanctioned 53 new ATCs, raising the total number of 118 with an intake of 20,000 students, and the ATCs offer 6 long-term and 23 short-term courses, sir. An amount of rupees 2,338 crores has been sanctioned for the construction of building and procurement of machinery and equipment, and I hope that the work on the construction of the buildings, recruitment of teaching and the non-teaching staff and the procurement of equipment will be completed earlier, sir. साहब पैसा तो साइंस से हुआ, इसके लिए जल्दी हमको बिल्डिंग बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए साहब, और उसके इक्विपमेंट हमको खरीदना चाहिए. We welcome the initiative of the government to bring all ATCs and polytechnic colleges under the state and the purview of the Young India Skills University, sir. Polytechnic colleges in the state and the purview of the Young India Skills University, sir. Road and building, sir. The demand for grants for road and building department is rupees 8,298 crores, sir, in the next year's budget. The regional ring road envisages the connecting to 2 national highways, one on the northern side and the other on the southern side, with total length of 348 kilometers, with an outlay of rupees 26,502 crores. The northern road runs from Sangareddy, Tupran, Gajwal to Chotupal, and the southern road runs from Chotupal to Shadnagar and Sangareddy, sir. Initially, it will be a 4-lane highway and expanded to 8-lane highway, sir. The state has to bear 50% of the land acquisition cost, and rupees 1,525 crores has been allocated for the purpose in the current year's budget, and the similar amount in the next year's budget, sir. I would like the government to announce the time frame for the completion of this crucial project with central assistance, sir. जब तक हम टाइम फ्रेम में काम नहीं करेंगे साहब, जब तक एक टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं देंगे, काम नहीं होगा साहब. It is also welcome step that the government has taken up upgradation of all R&B roads in the state under hybrid annuity model, sir. The government has decided to construct a regional ring rail in parallel to the regional ring road, and I understand that the survey is being taken up on this proposed network by central government. Construction of camp office cum residence complexes of MLAs has been taken up in 104 assembly constituencies across the state, and all these works are completed.
However, the works of this camp office cum residence complexes are not taken up in the 15 assembly constituencies in Hyderabad district since sites are not finalized. साहब तमाम कैंप ऑफिस कम ऑफिस तमाम एमएलएस के तेलंगाना में 106 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बनाए गए साहब. कंक्लूड करिए. अच्छा 104 में हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं साहब. पिछले बजट में भी हमने मुतालबा किया. 3 मिनट. आज जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुतालबा किया कि हैदराबाद के 15 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके एमएलएस के लिए कैंप ऑफिस बनाइए कम रेसिडेंस. आज तक काम नहीं हुआ साहब. I would like to point out that the government land parcels are available in each of the 15 constituencies in the twin cities and suitable sites can be chosen for the locating camp office. I would once again urge the government to take up the work of camp officer at the city MLA without any further delay. Due to the persistent efforts of the state government, the central government has finally granted approval for the long pending construction and Mamnoor Airport in Warangal and an airport at Adilabad. I will recall the state government proposed 6 regional airports at Mamnoor, Vasant Nagar, Jharkampalli, Adilabad, Devara Kandra and Palwancha. However, the consultancy agency Airport Authority of India has indicated feasibility of the Mamnoor, Jharkampalli and Adilabad and they reported that the airports at Vasant Nagar, Devarakonda and Palwancha are not feasible. I would request the R&B Minister Janab Komti Reddy Venkat Reddy Sahab to clarify these new airports. Forest Science and Technology Environment, sir. The allocation for Environment, Forest, Science and Technology Department in the year 2026-27 budget is rupees 1,049 crores. With the 664 crores, 0.73 acres of notified forest area, Telangana has 24% of its geographical area under forest. The forest area in the state is marginally better than the national average, 21.34%. After the formation of Telangana state, the then BRS government has launched Telangana Ku Harita Haran program with the objective to increase the green cover from 24% to 33% in the state. The Harita Haran program has been renamed as Vana Mahotsavam, Mass Afforestation program by Congress government. The outcome budget points out that during the current financial years, 20 crore seedlings were planted at the Vana Mahotsavam. The state has 2 tiger reserves spread on 2,611 square kilometers and 10 wildlife sanctuaries and the national parks in the state covering an area of 2,634 square kilometers. There is no reference in the outcome budget, sir, to the infrastructure development plan launching for the Nehru Zoological Park, Hyderabad, which is among the top 10 zoos park in the country and attracts 30 lakhs visitors. Not only in the country, sir, but in the Asia, sir. One of the best parks, sir. I would request the Minister of Forest and Endowment, Kunda Sureka Sahiba, to share the details of plan of Nehru Zoological Park, for which an allocation of 12 crores has been made in the budget for 2024 and 25 financial year. There has been speculation of the some time that the Nehru Zoological Park will be reallocated near Shamshabad, Shadnagar, sir. एक 2 मिनट था, हो गया था. 3 दिन से वेट कर रहे हैं साहब. A new zoo park is also being planned in the city outskirts and the speed, smart, proactive, efficient and effective delivery, sir. Projects envisaged by the CM Chief Minister Revanth Reddy Sahab. I would like to know the details of these proposals to shift Nehru Zoological Park and develop another park on the city outskirts, sir. Administration and religious endowment, sir. The demand for the grants for the administration of charitable and Hindu religious institutions under endowment department earmarked for 1,201 crores in the next financial year, covering expenditure on the salaries of Arsakas and the temple employees fund, common good fund and assistance for the upkeep of the temples apart from the grants for celebrating Bonalu and festival. There are
12,434 crores, 12,434 temples and charitable institutions in the endowment department, but only 156 temples have annual income of about rupees 25 lakhs to 397 temples rupees 22 lakhs to 2 lakhs to 25 lakhs, and 11,780 temples below 2 lakhs apart from 101 mutts. The outcome of the budget points out that out of the 434 temples, only 682 have net assessable income of about rupees 50,000, and the total income is rupees 538 crores in the last financial year 2024-25. The Assembly has passed the Telangana Charitable Hindu Religious Institutions Endowment Amendment Bill last year, sir. The amendment bill mainly provides for the constitution of Yadgir Gutta Temple Trust Board to manage the famous Yadgir Gutta Temple in the state. The government has initiated measures to preserve the state rich culture and spiritual heritage and to promote the spiritual tourism by providing better facilities to devotees. Massive funds have been allotted in the next year's budget for the development of temples such as Bhadrachalam, Dharmapuri, Mimulawada and Kaleshwaram temples. Add about the need for the development of the infrastructure and facilities at the major dargahs, sir, in the city and the other districts of the Telangana, sir. सब जैसा कि आपने इन तमाम मंदिरों को आप पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है साहब. आप जो पैसा दे रहे हैं इसके लिए हम आपका खैर मुकद्दम करते हैं साहब. हम भी चाहते हैं कि आपको इतने पैसा मिला जाए, टेम्पलों में काम होना चाहिए. इतना होने के बाद भी बराबर काम नहीं हो रहा साहब. आज आप 1,201 करोड़ वहां दे रहे हैं साहब. साथ साथ इसकी हमारा ये डिमांड है साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि आप जो शहर के जो दरगाह हैं मेन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मेजर दरगाह साहब, दरगाह सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ निजामाबाद साहब, दरगाह हजरत जहांगीर पीर, दरगाह हजरत जान पाक शहीद सूर्यापेट सर, दरगाह हजरत याकूब शहीद अन्नारम, इन दरगाहों को हमें पैसा देना चाहिए साहब ताकि वहां का मेंटेनेंस सही तरीके से हो. हम चाहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं है बल्कि पूरा यकीन है हमारे मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब पे कि उन्होंने ये दरगाहों के लिए भी पैसा सैंक्शन करेंगे साहब. म्यूलावाड़ा दरगाह का इंसिडेंट आपके सामने हुआ साहब. आप तमाम जानते हैं आज कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेक्युलर गवर्नमेंट है वैसी गवर्नमेंट दरगाह को तोड़ा गया साहब. ये आइंदा दोबारा ये होना ना चाहिए. मैं हुकूमत से कहूंगा, खासतौर से सीएम साहब से कहूंगा, होम डिपार्टमेंट आपके साथ है, ये जो लोग कुछ है जो आपकी गवर्नमेंट को आपको बदनाम करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं, इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए साहब. जो भी इस तरह की हरकत करता है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि कांग्रेस हुकूमत और आप बदनामी से बचे साहब. और साहब और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं साहब, भूल गया है, एक पॉइंट है जो निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल का साहब, नारायणगुड़े में निजामुद्दीन बिल्डिंग बनी हुई है साहब. वहां एक हॉस्पिटल के लिए मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूंगा साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूंगा. नारायणगुड़े में निजामुद्दीन एक बिल्डिंग बनी हुई है साहब, हॉस्पिटल के लिए, यूनानी हॉस्पिटल के लिए बनाया गया नारायणगुड़े में साहब. वो बिल्डिंग तैयार हुई साहब. बिल्डिंग तैयार होने के बाद उसमें एड्स डिपार्टमेंट लाके डाल दिया गया. आज कुछ भी नहीं है साहब, पूरा कचरा पड़ा, बिल्डिंग बिल्कुल खराब हुई. लेकिन अब गर्ल्स हॉस्टल टूटने के बाद हमने कोशिश की तो एक फ्लोर गर्ल्स हॉस्टल को वहां पे दिया गया साहब. नीचे खाली स्टोर बना के रखे साहब. अगर वो बिल्डिंग खाली हो जाए तो एक और यूनानी दवाखाना चालू हो सकता ताकि यहाँ के आवाम को भी सहूलत हो सकती साहब. मैं आखिर में साहब, आई एम थैंकफुल टू द स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी एंड माई सर. थैंक यू वेरी मच सर.